Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolis. So students, today I am going to start with the new topic which is prepositions. But before starting with the topic, I request you all please subscribe our channel and also hit the bell icon so that you don't miss out any of our important notifications. So let's start with our today's session. So first of all, you need to understand the meaning of this term preposition. ओके सो ये preposition का मीनिंग क्या होता है. सो ये दो वर्ड से मिलके बना है एज यू ऑल कैन सी. प्री प्लस पोजिशन. ओके सो प्री प्लस पोजिशन मेक्स योर preposition. So as the name suggests, preposition it should come before its object. Okay, it means it is preceding something. That is why it is known as preposition. So it is positioned before its object. Okay, for example, I kept my pencil in the box. I kept my pencil in the box. Okay, so in is your preposition. Okay, and its object is box. Okay, so it is placed before its objects. That's why it is known as preposition. Okay, so preposition is a word which is used to express the relationship between a noun or a pronoun with the object. It shows time, place, relationship, distance और location. ठीक है, तो preposition में क्या है? It is always followed by your noun or a pronoun. It is never followed by a verb. Preposition is never followed by a verb, and this is a golden rule of preposition. You all know, never followed by a verb. Now see these examples. For example, if I say I love to swim. Now as you all know, swim is what? Swim is your action word. So swim is a verb. Now here to is not a preposition. To is not working as a preposition here. To swim combined together is your infinitive. Okay, this infinitive I have already covered under the session, gerund participles and infinitives. So to swim together is your infinitive. So if I say example 2, if I take he is sitting next to me. If I say he is sitting next to me, now here to is your preposition and it is followed by me which is your pronoun. So as I said, preposition के बाद या तो उसका noun होगा, pronoun होगा, यानी preposition का object होगा. preposition के बाद कभी भी verb नहीं आ सकता है. Okay, so यहाँ पे to क्या है? To is acting as a preposition because it is followed by a pronoun which is me. Similarly, as you can see in this example, I kept my pencil in the box. So the box is what? Box is your noun. It's a common noun. So preposition in is followed by a noun. And here in this example, you can see preposition is followed by a pronoun. But here to is not a preposition because it is written to swim. So to swim, actually it is acting as a noun. Okay, so it is actually infinitive. To swim is a category of verbs which comes under your non-finite verbs. Okay, so to swim is your infinitive and it is not a preposition. Again, if I write I love swimming, if I write like this, I love swimming. Okay, so now here is no preposition, but here swimming is your gerund. Okay, so what I mean to clarify is that preposition, first of all, preposition comes before its object. That is why it is written preposition. Okay, and it is followed either by a noun or a pronoun, but it is never followed by a verb. Okay, now let's come to the examples. She will arrive on Sunday. तो यहाँ पर on क्या है? आपका preposition है and it is showing you the time. So it's on is a preposition of time. As I told you, it shows you time. John lives in Mumbai. In is a preposition of place. ये बता रहा है John कहाँ रहता है? He lives in Mumbai. So here in is showing you a preposition of a place. Ram is married to Sita. To is again your preposition and it is reflecting the relationship. Okay, the school is 4 kilometers from his house. ठीक है, from is your preposition and it is showing you the distance. So preposition can be used to show your time, place, relationship, distance, location, anything. Okay,
चलिए अब हम लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है। और बहुत ही कंफ्यूजिंग ये वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है पहले तो कि उसके आगे प्रेपोजिशन यूज होना है कि नहीं होना है, और होना है तो कौन सा होना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मैंने क्या है पूरी क्लब करके आपके लिए लिस्ट बना दी है जिसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पहला कौन सा है आपका, कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। सो कंसिस्ट के साथ आपका कौन सा प्रपोजिशन आता है, कंसिस्ट इज फॉलोड बाय ऑफ, बट कंप्राइज के साथ यू डोंट यूज एनी प्रपोजिशन। Okay, so this house consists of 4 bedrooms. Similarly, if I say composed, so composed is also followed by preposition of, composed of. Okay, and after comprise we never use any preposition, so we will simply write this house comprises 4 bedrooms. Okay, next, describe and describe to. So if you describe something to someone, so what you are describing actually it does not use any preposition. For example, he described his sea voyage. ओके उसने अपनी सी जर्नी डिस्क्राइब करी, और ही डिस्क्राइब द पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें जो चीज वो डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे इसमें ही इज डिस्क्राइबिंग ए सी वॉयज, सो इट इज नॉट प्रिसीडेड बाय एनी preposition. Okay, but the person to whom he is describing something, okay, there we will use a preposition to. For example, he described his sea voyage to us. किसको डिस्क्राइब करी, हमको डिस्क्राइब करी, to his friends, to us, to his family, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो किसी को डिस्क्राइब करेगा तब अपने को preposition to यूज करना है, but if he is describing just something, okay, so for that something we are not going to use any preposition. Okay, next, discuss. So again, if you are discussing something, you are discussing some matter, you are discussing the content, you are discussing the project, you are discussing any topic, you are not going to use any preposition. So simply you can write he discussed the matter. You cannot say he discussed on the matter. बहुत से स्टूडेंट से गलती करते हैं, they write that he discussed on the topic. No, discuss we are not going to use any preposition. बट डिस्कस के साथ विद कैसे लगाना है, अगेन इफ इज डिस्कसिंग समथिंग विद समवन, जैसे कि डिस्क्राइब के साथ क्या था, किसी को डिस्क्राइब कर रहा था तो टू आ रहा था, लेकिन डिस्कस क्या है, किसी के साथ डिस्कस करेगा। डिस्क्राइब आप किसी को करते हो इसीलिए आपने टू लगाया है, डिस्कस आप किसी के साथ करते हो इसलिए आपका प्रपोजिशन विद यूज होगा। ही डिस्कस द मैटर विद हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के साथ मैटर को डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट, आस्क फॉर और ऑर्डर। ओके, दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है, बट विथ आस्क वी यूज द preposition फॉर। ही आस्क्ड फॉर ए कप ऑफ टी, ही आस्क्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफी, बट ऑर्डर के साथ वी डोंट यूज एनी preposition. सो सिंपली यू हैव टू से ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। यू कैन नॉट राइट ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। ओके, अगेन इसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं ही ऑर्डर्ड फॉर ए लेमोनेड, कुछ भी, तो ऑर्डर के साथ आपको कोई preposition यूज करना है, विद आस्क यू यूज द preposition फॉर। सिमिलरली वेंट टू और वेंट इनटू एंड एंटर, ठीक है। सो यू कैन राइट ही वेंट इनटू द रूम, ही वेंट टू हिज रूम, बोथ आर करेक्ट, बट विद एंटर वी डोंट यूज एनी preposition. Okay, so we simply write he entered the room. Okay, so again enter is your exception with which we do not take any preposition. Next, inquire into and investigate. So you inquire into something and you investigate something. You don't investigate into something. That is why with investigate we don't use any preposition, and with inquire we use the preposition into. For example, the authority inquired into the financial dealings of a company, and the authority investigated the financial dealings of the company. So you have to be very careful which word is used. ओके, तो कौन सा वर्ब यूज हुआ है, इंक्वायर यूज हुआ है कि इन्वेस्टिगेट, उसी के हिसाब से हम लोग आगे preposition यूज करना है कि स्किप करना है preposition. वी आर गोइंग टू टेक आवर कॉल. ओके, नेक्स्ट, आर्ग्यू विथ एंड आर्ग्यू ओवर.
So we use the preposition with when we have to say that he is arguing with someone. Okay, तो किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा है, किसी पर्सन के साथ आर्ग्यू कर रहा है, so you use the preposition with. और किसी चीज पे आर्ग्यू कर रहा है तो उसके साथ हम लोग ओवर यूज करते हैं. ओके, सो माई सिस्टर आर्ग्यूड विद मी. ओके, एंड माई सिस्टर आर्ग्यूड ओवर द ट्राइफल थिंग्स. ठीक है, उसने छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू कर रही है, तो चीजों पे आर्ग्यू करने के साथ आप लोग ओवर यूज करते हो. शी आर्ग्यूड ओवर द ट्राइफल थिंग्स एंड शी आर्ग्यूड विद मी. ओके, नेक्स्ट apologize. So again with apologize, if you are apologizing to someone, you are going to use the preposition to, and you are apologizing for something wrong that you did, so you use the preposition for. So he apologized to me for shouting at me. Okay, तो मेरे को apologize किया तो to आया, और किसी चीज के लिए apologize किया, किस चीज के लिए apologize किया, क्योंकि वो चिल्लाया था मेरे ऊपर, तो फॉर शाउटिंग एट मी. ओके, नेक्स्ट अग्री. सो अग्री में विद कब आएगा, जब आप किसी के साथ अग्री करो, आप अग्रीमेंट करो. और अग्री टू कब आएगा, जब आप किसी चीज को अग्री करो. सो विद पर्सन वी आर गोइंग टू यूज विद, एंड फॉर थिंग वी यूज टू. ओके, सो यू अग्री विद समवन एंड यू अग्री टू समथिंग. My friend agreed with me about the need for change. My friend agreed to my terms. My friend agreed to my proposal. Okay, my friend agreed to my ideas. तो किसी चीज के साथ आप अग्री कर रहे हो, to the things, to the terms, to the proposals, तो आप to यूज करोगे. और यहां पर मेरे साथ अग्री कर रहा है with me, तो पर्सन की बात हो रही है, तब आपका अग्री के साथ with preposition आएगा. Okay students, so this is the very important list which I am discussing today. ठीक है, ये बहुत ढूंढ के सारे लेकर आए आपके लिए कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए. तो एक एक करके आप पूरा एंड तक ये सेशन देखिएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटेबल. सो विद अकाउंटेबल यू यूज टू when you are going to use person after that, because you are accountable to someone for something. ठीक है ना, अकाउंटेबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, किसी को आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो. तो किसी को होगे तो आप टू लगाओगे. यू आर अकाउंटेबल टू योर बॉस, तुम अपने बॉस को अकाउंटेबल हो. द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, पब्लिक को अकाउंटेबल है. एंड अकाउंटेबल फॉर योर वर्क. ठीक है ना, किसी चीज के लिए अगर अकाउंटेबल हो रहे हो तो फॉर आता है, किसी को तो टू प्रेपोजिशन. ओके, next apply to and apply for. So you apply to some place, you apply to some company and you apply for some post in that company. तो आप किसी कंपनी की बात करो, so you write he applied to ABC company for the role of a typist. उसने अप्लाई कहाँ किया, कंपनी में, तो अप्लाई के साथ टू आएगा. ही अप्लाइड इन ABC कंपनी मत लिखिएगा. Okay, so most of the students also used to write he applied in dash 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 company. नहीं, अप्लाई के साथ आप कंपनी के साथ किसी चीज में अप्लाई करते हो तो आपको टू लगाना है, और किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो, सो यू अप्लाइड फॉर सम रोल, फॉर सम पोस्ट. ओके, सो उसके लिए फॉर आता है. ही अप्लाइड फॉर द रोल ऑफ अ टाइपिस्ट, ही अप्लाइड फॉर द जॉब. ओके, नाउ ब्लाइंड, ये बहुत फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का. तो ब्लाइंड में देखिए इन कब आता है, ही इज ब्लाइंड इन वन है. जब एक आंख की बात हो कि वो एक आंख से अंधा है तो इन लगाना है. जब बात हो बोथ दी आईज की तब आपको विद लगाना है, ही इज ब्लाइंड विद बोथ आईज. और जब आपको बोलना है कि वो अपनी मिस्टेक्स को मतलब समझ नहीं पा रहा है, वो अंधा हो गया है, सो ही इज ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक्स, ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स. इसका मतलब क्या हो गया, वो अंधा हो गया, उसको दिख नहीं रही है उसकी गलतियां. तो जब ही इज ब्लाइंड इन वन है, he is blind with both the eyes and he is blind to his faults or mistakes. Okay, नेक्स्ट आते कंकर. कंकर करना मतलब अग्रीमेंट करना किसी के साथ. ओके, अग्री करना. सो आई कंकर्ड विद जॉन ऑन हिज डिसीजन. सो यू कंकर विद समवन, कि आप उसके साथ अग्री करते हो, जैसे अग्री में था, you agree with someone. Okay, so similarly you concurred with John on his decision.
but for something we write in. Okay, like in agree we use to for the thing. He agreed to my proposal, but he concurred in John's decision. He concurred in my ideas. ठीक है ना, तो किसी चीज में वो सहमति दिखाता है तो इन आता है, और किसी के साथ वो सहमति दिखा रहा है तो with आएगा. Okay, so you concurred with someone but you concurred in something. Okay, again this is very important. Now complain. कंप्लेन भी एक कंफ्यूजिंग सा वर्ब होता है. सो यू कंप्लेन, जब किसी को कंप्लेन करते हो, सो यू यूज प्रेपोजिशन टू. एंड इफ यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हो तो अगेंस्ट, और किस चीज के बारे में कंप्लेन की जा रही है तो अबाउट. सो इसका मैंने कंबाइंड सेंटेंस बना दिया. ही कंप्लेन टू हिज बॉस, किसी को कर रहा है तो टू आया, किसी के खिलाफ कर रहा है तो अगेंस्ट आया, अगेंस्ट हिज कलीग. और किसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, क्या मैटर है, अबाउट हिज मिसबिहेवियर. ओके, सो ही कंप्लेन टू हिज बॉस अगेंस्ट हिज कलीग अबाउट हिज मिसबिहेवियर. तो ऐसे आप भी और सेंटेंसेस क्या है फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफर. सो डिफर विद कब आएगा, विद आएगा. ही डिफर्ड विद मी ऑन दिस पॉइंट, पर्सन के लिए विद आएगा, और फ्रॉम किस में आएगा, थिंग में फ्रॉम आएगा. योर हैड डिफर्स फ्रॉम माइन, योर कार डिफर्स फ्रॉम माइन इन वेरियस एस्पेक्ट्स. ठीक है ना, तो आपकी टोपी हैट मेरे से काफी डिफरेंट है, डिफर कर रही है. ही डिफर्ड विद मी ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, वो मेरे से अलग था इस पॉइंट में, वो डिफर कर रहा है. ओके, डिसअग्री कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो. तो ही डिफर्ड विद मी ऑन दिस पॉइंट, तो पर्सन के साथ किया तो विद आया. और अगर थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं तो योर हैड डिफर्स फ्रॉम माइन. ओके, वैसे ही इसमें एक और कंफ्यूजिंग होता है, डिफर के जैसा पार्ट होता है, उसमें भी होता है अलग करना. सो पार्ट में जस्ट इसका उल्टा यूज होता है. विद होता है इसमें पार्ट में थिंग के साथ, और फ्रॉम यूज होता है पर्सन के साथ. डिफर में जस्ट इसका उल्टा था, डिफर में विद पर्सन के साथ था और फ्रॉम टू के साथ था. पार्ट में क्या है, विद थिंग के साथ है. ही पार्टेड विद हिज वेल्थ, ही पार्टेड फ्रॉम हिज सन. ओके, तो उस ही विद थिंग के साथ आया और फ्रॉम पर्सन के साथ आया. ओके, सो डिफर का या पार्ट का, दोनों का एक आप याद कर लो कि डिफर विद अगर यूज कर रहे हैं तो पर्सन के साथ आएगा, फ्रॉम थिंग के साथ आएगा, और पार्ट में जस्ट उसका ऑपोजिट यूज होगा. Okay, next die. So you die of some internal factor, or you can say you die of some disease, and you die from some external factors, like he died from hunger, from overeating. ठीक है, and he died of fever, of malaria, of cholera. तो किसी इंटरनल चीज की वजह से, मतलब कोई डिजीज की वजह से मरता है तो डाइड ऑफ आता है. उसके अलावा किसी एक्सटर्नल चीजें से मरता है तो फ्रॉम आता है. ओके, ही डाइड फ्रॉम द वुंड. बट एक्सीडेंट में क्या आ जाता है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट. ओके, और कंट्री के लिए क्या आ जाएगा, ही डाइड फॉर हिज कंट्री. ओके, नेक्स्ट डील. डील देखिए कैसे यूज होता है. सो डील इन कब करते हैं यूज, जब आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल डील्स इन फर्नीचर, माई फादर डील्स इन गारमेंट्स, माई फादर डील्स इन आयरन एंड स्टील. तो किसी बिजनेस की बात करते हो, सो डील्स इन समथिंग एज अ बिजनेस. नाउ डील विद का मतलब, डील के साथ विद कब यूज करते हो, अगेन इफ यू deal with something as a subject. For example, this movie deals with the dowry system, this movie deals with the serious issue, his topic deals with some serious issue. Okay, so किसी सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे तो विद आएगा. किसी बिजनेस की बात हो रही कि वो मेरे अंकल फर्नीचर में डील करते हैं, गारमेंट्स में डील करते हैं, आयरन स्टील में डील करते हैं, तो इन आएगा. और किसी पर्सन के साथ आप डील करते हो तो अगेन विद आता है. She deals rudely with the customers, she deals fairly with her customers, she deals honestly with her customers. ठीक है, so इसमें क्या आया, with आया. तो क्या देखा डील में, आप एज अ बिजनेस किसी चीज में डील करते हो तो डील इन समथिंग,
देन समथिंग इज डीलिंग विथ समथिंग का मतलब कि किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक पे डील किया जा रहा है और पर्सन में विद आता है. ओके. डिस्पेंस, डिस्पेंस करना मतलब दे देना, बाहर निकालना. सो टू गिव आउट. सो दिस वेंडिंग मशीन डिस्पेंसेस टी. तो इसमें क्या हुआ, जब ये हो रहा है कि वेंडिंग मशीन से क्या टी बाहर आ रही है, वो दे रही है, गिव आउट कर रही है, तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज हुआ. हमने नहीं बोला था वेंडिंग मशीन डिस्पेंसेस आउट टी, कुछ प्रेपोजिशन नहीं लगाया, डिस्पेंसेस टी विदाउट एनी प्रेपोजिशन. बट विद कब लगाएंगे, टू डिस्कार्ड का अगर मतलब, डिस्कार्ड मतलब अब जैसे उसका अब यूज ही नहीं रहा, खत्म कर दिया. ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल डेबिट कार्ड्स डिस्पेंस विद द नीड फॉर कैश. डेबिट कार्ड्स के आने से अब कैश की जरूरत एकदम खत्म हो गई, तो इसने डिस्कार्डेड द यूज ऑफ कैश. ओके, सो डेबिट कार्ड डिस्पेंस विद द नीड ऑफ फॉर कैश. सो डिस्पेंस दो तरीके के हो गए. एक तो हो गया गिव आउट करना, जैसे मशीन टी कॉफी स्नैक्स डिस्पेंस कर रही है, और या फिर किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्कार्ड कर देना, तो विद आएगा, डिस्पेंस विद समथिंग. ओके. नेक्स्ट, जंप एट एंड जंप टू. So John jumped at the opportunity to work overseas and please do not jump to the conclusion. At the opportunity मतलब उसने opportunity को नहीं छोड़ा. He jumped at the opportunity. He jumped at the offer. ठीक है, तो at आएगा. और to मतलब एकदम उस चीज पे मत पहुंच जाओ कूद के, इसका मतलब ये हुआ. So please do not jump to the conclusion, but you jump at the opportunity. मतलब उसने तुरंत वो opportunity हथिया ली जो थी अपने, तो एट आएगा. और किसी नतीजे तक मत पहुंच जाओ, ठीक है, एंडिंग पोजीशन तक, तो टू. लीन अगेंस्ट एंड लीन ऑन. सो अगेंस्ट किसके लिए यूज होगा, फॉर ए नॉन लिविंग थिंग समथिंग, मतलब आप किसी के अगेंस्ट लीन कर रहे हो, अपने आप को सपोर्ट दे रहे हो. एंड यू लीन ऑन समवन. फॉर एग्जाम्पल, ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, द ओल्ड मैन लीन्ड अगेंस्ट द डोर. आई लीन ऑन माई फ्रेंड इन डिफिकल्ट टाइम्स. ठीक है ना, मतलब मैं अपने फ्रेंड को के ऊपर डिपेंड हो जाता हूं जब कुछ डिफिकल्टी आती है. ओके, तो लीन ऑन समवन बट लीन अगेंस्ट समथिंग. नेक्स्ट, लाइबल टू एंड लाइबल फॉर. सो लाइबल, ही वॉज हेल्ड लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year. किसी चीज के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, मतलब किसी चीज के लिए उसको सजा हुई. Trespassers were liable to a fine of ₹10,000. किसी चीज के लिए पनिशमेंट दी जा रही है. ठीक है, जब पनिशमेंट की जैसे बात होती है फ्रॉम द कोर्ट, तो पनिशमेंट के लिए आप लाइबल टू यूज करते हो. लाइबल फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर. लाइबल फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर. यू विल बी लाइबल फॉर ऑल द डैमेजेस कॉस्ट. यू आर लाइबल फॉर योर कंपनीज डेट्स. मतलब आप उस चीज के लिए लाइबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो. एंड ही इज लाइबल टू पे अ फाइन ऑफ ₹10,000. ठीक है, सो पनिशमेंट की बात होती है तो लाइबल टू, लाइबल फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल. ओके. नेक्स्ट आते हैं लिव ऑन एंड लिव बाय. तो लिव ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर जिंदा रहना, तो कुछ खाकर, मतलब ही लिव्स ऑन अ लिक्विड डाइट, ही लिव्स ऑन फ्रूट्स, ही लिव्स ऑन ब्रेड. किसी चीज के सहारे जिंदा है. लिव बाय मतलब हिज मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, क्या करके वो जिंदा है, मतलब ही लिव्स बाय फार्मिंग, ही लिव्स बाय हंटिंग. ओके, ही लिव्स बाय लेबर, मतलब कोई जो काम दिखा रहा है, तो लिव बाय आ जाएगा. और किसी चीज को खा कर जिंदा है तो लिव ऑन समथिंग. ओके, ना ये जो चारों वर्ड्स हैं, दे मोर और लेस कैरी द सेम मीनिंग. अधर टू, कॉन्फर्म टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद. तो देखिए, अधर और कन्फर्म के साथ टू आएगा. यू शुड अधर टू द रूल्स, इन सबका मतलब मोर और लेस हो गया ऑब्जर्व. ओके, सो यू शुड अधर टू द रूल्स, यू शुड ऑब्जर्व द रूल्स. जैसे यू शुड कॉन्फर्म टू द रूल्स, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, एंड यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स. सो ये चारों आपको याद रखने हैं. अधर टू, कॉन्फर्म टू, अबाइड के साथ बाय आता है, एंड कंप्लाई के साथ विद आता है. ओके, तो ये चारों मोर और लेस सिमिलर मीनिंग ही कैरी करते हैं, विच मीन्स ऑब्जर्व, आपको मतलब वो चीज फॉलो करनी है. सो यू शुड अधर टू द रूल्स, यू शुड कॉन्फर्म टू द रूल्स, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, एंड यू शुड कंप्लाई विद द रूल्स. ओके,
नेक्स्ट, ड्वेल ऑन, मूज ऑन, मल ओवर, ब्रूड ओवर। ठीक है, तो किसी चीज के ऊपर टिके रहना, चिपके रहना। ठीक है, सो लेट्स नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में ही मत सोचते रहो। लेट्स नॉट मूव ऑन द पास्ट, मूव के साथ भी ऑन आएगा। मल के साथ क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। लेट्स नॉट मल ओवर द पास्ट, और ब्रूड के साथ भी ओवर, ब्रूड, लेट्स नॉट ब्रूड ओवर द पास्ट। सिर्फ पास्ट के बारे में ही मत सोचते रहो बैठे बैठे, ठीक है ना। तो ड्वेल ऑन, मूव ऑन, मल ओवर एंड ब्रूड ओवर। ओके, वैसे पॉन्डर होता है, पॉन्डर के साथ आप कमेंट करके बताइए क्या आता है। नेक्स्ट, अप्राइज और अक्वेंटेड। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना, और अक्वेंटेड विद का मतलब किसी चीज की खुद को नॉलेज देना, नॉलेज देना। ठीक है, इन्फॉर्म करना, वैसे ही हो गया एक तरीके से। सो अप्राइज के साथ क्या आता है, ऑफ, और अक्वेंटेड के साथ क्या आता है, विद। सो ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ द अलार्मिंग सिचुएशन, उसको वो उस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया गया। ओके, कीप मी अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन, तो अप्राइज ऑफ, ही वॉज अक्वेंटेड विद द अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है, उसको उसके बारे में नॉलेज दी गई, वो उसके पास उस चीज की नॉलेज थी। ही वॉज अक्वेंटेड विथ माई फ्रेंड। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं प्रेपोजिशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलग रूल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो देखते हैं इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बाय कार आना है, इन कार आना है, ऑन कार आना है, क्या आना है। तो वो सारे रूल्स आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड क्लियर कर लेंगे। सो पहले बात करेंगे जनरल सेंस की। तो इफ वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल सेंस, सो हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय, सिंपली बाय, चाहे उसके आगे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो। सो आई ट्रैवल बाय बस, आई ट्रैवल बाय कार, आई ट्रैवल बाय ट्रेन, आई ट्रैवल बाय प्लेन, आई ट्रैवल बाय शिप, आई ट्रैवल बाय टैक्सी, कुछ भी। ठीक है, तो जनरल सेंस में बात करोगे तो बाय आएगा। बट अगर स्पेसिफिक सेंस में बात करोगे, ठीक है, अब स्पेसिफिक सेंस में दो कैटेगरीज है, एक है पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन और एक है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो एक तो पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के साथ इन आएगा, या फिर जो आप ऐसे मान लो जो स्मॉल व्हीकल्स होते हैं उनके साथ इन आएगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ ऑन आएगा, या फिर जो ऐसे व्हीकल जिसके अंदर आप खड़े होके चल सकते हो, जैसे आप ट्रेन के अंदर चल सकते हो, बस के अंदर चल सकते हो, या फिर जिसके ऊपर बैठ सकते हो, जिसमें कुछ सरफेस है उसके ऊपर बैठ सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप मोपेड के ऊपर बैठ सकते हो, स्कूटर के ऊपर बैठ सकते हो, तो ऑन आता है। ठीक है, सो जनरल सेंस में क्या आएगा, बाय, और स्पेसिफिक सेंस में इफ वी आर गोइंग टू यूज पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन और द स्मॉल व्हीकल्स वी यूज इन। सो वी यूज इन विथ कार, टैक्सी, ट्रक, boat and helicopter. Okay, so I got in my car, in a taxi, in a truck, in a boat, in a helicopter. और ऑन किसके साथ आता है, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, या ऐसे याद रख सकते हो जिसपे आप खड़े होकर चल सकते हो, या फिर जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो। सो बस आपका क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेन भी, प्लेन भी, शिप भी, और बाइक कैसा है, जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो। आई ट्रेवल्ड ऑन फुट, इवन अगर आप पैदल चलोगे तब भी ऑन यूज होता है। सो आई गॉट ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ बाइक। ओके, सो अगर आप स्पेसिफिक सेंस में ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे तो आपको ये रूल यूज करने हैं, कार, टैक्सी, ट्रक, बोट, हेलीकॉप्टर के साथ इन यूज करना है, और बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, बाइक के साथ ऑन यूज करना है। ओके, अदरवाइज सिर्फ जनरल सेंस में बात करोगे तो बाय यूज करना है विद एवरी ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो आई ट्रेवल्ड इन जॉन्स कार, तो आई ट्रेवल्ड बाय जॉन्स कार नहीं आएगा, आई ट्रेवल्ड इन जॉन्स कार। ओके, आई ट्रेवल्ड इन माई कार, आई ट्रेवल्ड बाय माई कार नहीं आएगा, आई यूजुअली ट्रेवल बाय कार, तो बाय आया, मैंने जनरल सेंस में बात करी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए टाइम में एट किसके साथ यूज होता है, सो यू से एट विद डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट एंड नाइट। I will meet him at dawn, I will meet him at dusk, I will meet him at sunrise, I will meet him at sunset, I will meet him at midnight, I will meet him at, या we sleep at night। ठीक है, जनरल सेंस में नाइट का एक स्पेशल केस है, एट के साथ भी यूज होता है और इन द नाइट भी यूज होता है। सो नाइट का क्या केस है, अगर नाइट आपका जनरल सेंस में यूज हो रहा है,
फॉर एग्जाम्पल वी स्लीप एट नाइट, हम लोग रात में सोते हैं, जनरल सेंस में यूज हो रहा है एट नाइट. आई वॉज woke up in the night by a noise. I was woke up in the night by a noise. So ये क्या हो रही है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है, तो आपका इन आएगा और जनरल सेंस में एट आएगा. ठीक है, तो एट किसके किसके साथ आएगा, डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट और नाइट के साथ. और इन किसके साथ आएगा, आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो इन आएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. ओके, अब ये जो मैंने लिखा है जनवरी और 1991, ये क्या है, तो जैसे, और ये ऑन के साथ क्या लिखा है, मंडे. सो आई वॉज बोर्न ऑन मंडे. डे के साथ क्या आएगा, ऑन. अगेन ऑन 4th of February. फोर्थ, अगर ये डेट दिए तो ऑन 3rd जुलाई, ऑन 4th February ऐसे आएगा. सिर्फ मंथ दिया हो तो आई वॉज बोर्न इन जनवरी, और सिर्फ ईयर दिया हो तो आई वॉज बोर्न इन 1991. ओके, तो सिर्फ मंथ दिया है, सिर्फ ईयर दिया है तो अगेन इन यूज होगा. डे दिया है तो ऑन यूज होगा. सिमिलरली अगर ये डेट दी है मंडे, यानी आपका डे और डेट, तो दोनों में आपका ऑन यूज होगा. डे और डेट दोनों में ऑन यूज होगा. अब बात करते हैं सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है. सो सिंस रिफर्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम and for refers to a period of time. I have not seen him since Monday, since January, since 1995, and I have not seen him for ages, for a week, for months. I have not seen him for years. ठीक है, और सिंस किसके साथ आ जाएगा, सिंस आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, ही इज सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है तो सिंस यूज हो रहा है. जैसे आपने देखा वीक, मंथ, ईयर, फॉर यूज हुआ, बट कौन सा वीक में कौन सा डे है, तो मंडे, तो सिंस मंडे. मंथ, कौन सा मंथ, जनवरी, तो सिंस जनवरी. ईयर, पूरा ईयर है तो फॉर, कौन सा ईयर, पॉइंट ऑफ टाइम 1995, तो सिंस यूज हुआ. ओके, सो पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो फॉर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस भी इंपॉर्टेंट है. सो एट किसके लिए यूज होता है, अ सर्टेन पॉइंट. ही इज एट मीटिंग, मीटिंग पे है. आई मेट हिम एट एयरपोर्ट. ओके, ही वेटेड फॉर मी एट द कॉर्नर. ओके, सो किसी सर्टेन पॉइंट की बात होती है तो आप क्या यूज करते हो, एट. इन किसके लिए यूज करते हो, एनक्लोज्ड स्पेस की. सो आई केप्ट माई पेंसिल इन द बॉक्स. आई ग्रीव वेजिटेबल्स इन माई गार्डन. किसी चीज के अंदर, कोई चीज उसके अंदर है तो इन. ओके, ऑन, किसी चीज के कोई चीज ऊपर है सरफेस में, तो ऑन. सो शी स्प्लिट मिल्क ऑन द फ्लोर. शी थ्रू हर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर. ओके, सो ऑन क्या है, किसी चीज के ऊपर. ही केप्ट हिज बुक्स ऑन द टेबल. अबव क्या है, वन थिंग हायर टू अनदर, नो टच. नो टच, कोई चीज इधर है और कोई ये एक है सर, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट एक इधर है और एक उसके ऊपर है, और दोनों में कोई भी टच नहीं कर रहा है, पॉइंट टच नहीं है, तो एक से काफी ऊपर, तो क्या यूज होता है, अबव. सिमिलरली बिलो क्या होता है, सरफेस जो भी है एक ऑब्जेक्ट है तो उसके नीचे है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसको टच
नहीं कर रहा होता है, ना अबव में टच कर रहा है ना बिलो में टच कर रहा है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स. ओके, टू ऑब्जेक्ट्स. सो अबव के लिए आप कैसे यूज करोगे? द प्लेन फ्लू above our heads. Okay, below, she lives in an apartment below mine. मेरे नीचे वाले अपार्टमेंट में रहती है. Okay, over, when one thing is directed upwards to another person or thing, मतलब कोई चीज है उसी के ऊपर दूसरी चीज है तो, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों में. जैसे she put the blanket over me, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड. या तो अगर टच नहीं कर रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड्स है, लाइक देयर इज अ फैन ओवर माई हेड. ओके, और या ओवर आप किसके लिए यूज कर सकते हो? किसी को कोई चीज एक्सीड कर रहा है. यू कैन वोट व्हेन यू आर ओवर 18 ईयर्स ओल्ड. ओके, और टेम्परेचर के लिए क्या यूज करोगे? टेम्परेचर टुडे इज above 14 डिग्री सेल्सियस और बिलो 14 डिग्री सेल्सियस. सो किसी पॉइंट से आप कंपेयर कर रहे हो, हायर एंड अबव, तो टेम्परेचर में भी अबव और बिलो यूज होगा. अंडर क्या हुआ? किसी चीज के नीचे है. सो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, समथिंग लोअर टू समथिंग एल्स. ओके, चलिए अब देखिए, ये कुछ एक स्पेशल लिस्ट बनाई है मैंने टू, फॉर और फ्रॉम की, जिसमें ये कुछ कॉमन वर्ड्स है जिनके साथ क्या है, हमेशा टू यूज होता है. तो आप चाहो तो ये लिस्ट याद भी कर सकते हो, चाहो तो एक बार पढ़ लो कि जिससे अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद रहे. और याद कैसे रहेंगे? जितने आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, access to, assent to, alternative to something, abhorrent to something, acceptable to someone, accustomed to doing it, adjacent to something, akin to something, alien to, applicable to, beneficial to someone, comparable to something, conducive to me, favorable to me, faithful to me, indifferent to me, indebted to me, loyal to me, objection to something, reference to something, resemblance to something, restricted to something, sensitive to something, succumb to something, surrender to someone, sequel to something, tantamount to something, yield to something, in regard to something, in reference to something. ओके, सो ये सब इन रिगार्ड टू, इन रेफरेंस टू, और ये जितनी भी मैंने अभी वर्ड्स बोले इन सबके साथ क्या आएगा? आपका प्रेपोजिशन टू यूज होता है. ओके, ही सरेंडर्ड टू हिज एनिमी. दिस मूवी इज अ सीक्वल टू द प्रायर वन. ओके, इन रिगार्ड्स टू समवन, he is faithful to me, this weather is favorable to me, this offer is beneficial to all of us. ठीक है, तो इन सबके साथ आपको आप सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम कर सकते हो, और इन सबके साथ आपका कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? टू. नेक्स्ट, ऑफ. सो ही गेव एन अश्योरेंस ऑफ समथिंग, एबॉरेंस ऑफ समथिंग. एबॉरेंस मतलब हेटरेड की फीलिंग. अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, acquitted of the charges मतलब फ्री हो जाना चार्जेस. afraid of me, apprised of something इन्फॉर्म करना. aware of danger, dogs. bereft मतलब किसी चीज से किसी चीज को अलग कर देना, दूर कर देना. bereft of something, cautious of something, consist of something, confident of something, convinced of something, deprived of something, devoid of something, diffident of something, doubt of someone, something, desirous of something, envious of, experience of something, fond of something, fearful of something, guilty of, ignorant of, proud of, sanguine मतलब optimistic of something, suspicious of something, void of, weary of, worthy of, in course of time बोलते हैं, in course of, in lieu of something किसी चीज की जगह, तो in lieu of, in course of, और in regards for. in regards के साथ क्या था? to. in regards to, in reference to, in course of, in lieu of. तो ऐसे आपको ये याद रखने हैं, ठीक है ना. सिमिलरली आपकी for की लिस्ट है. he has an affection for babies, ambition for anxiety, for something, apology for his misdeeds, appetite for blame for his doing, capacity for compassion, for compensation for something, contempt for craving, for desire, for yearn for, longing for, सबके साथ for आ जाएगा. eligible for something, eminent for something, grateful for something, guarantee for, notorious for, passion for,
पिटी फॉर, सॉरी फॉर समथिंग, सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस, यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। सो इन सब के वर्ड्स के साथ आपका क्या आता है, नॉर्मली फॉर प्रपोजिशन यूज होता है। लास्ट फ्रॉम का देख सकते हैं, किसी चीज से, सो अब्सटेन फ्रॉम समथिंग, उस चीज से दूर रहो, डिबार फ्रॉम, डिफर फ्रॉम मी, एक्सक्लूड फ्रॉम समथिंग, एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग, इन्फ्रेंच फ्रॉम समथिंग, आप किसी चीज से इन्फ्रेंच निकालते हो ना, प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग, प्रोहिबिट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम इलनेस, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स के साथ फ्रॉम यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहीं पे ओवर होती है आज की क्लास प्रपोजिशन की। मैंने इसको पूरा अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करी है पूरी क्लास में, जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस कवर हो जाए। आई होप ये क्लास आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कि जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।